Sir, teachers, my dear friends, and other guests. Good morning, everyone. Myself E. Grayson and myself B. Susindra from 5th A. Today, I feel a proud privilege to wish all of you a happy Republic Day. India got independence from British in 1947 after the sacrifices made by many freedom fighters. It is important to know the meaning of being republic. Now, India is a sovereign, socialist, democratic and republic country. On this 75th Republic Day, I feel elated to stand before you to speak few words on the importance of this day. On 29th August 1947, the drafting committee of our Indian Constitution was appointed and had 7 members: Alladi Krishnaswamy Iyer, N. Gopal Swamy, Dr. B.R. Ambedkar, the chairman, K.M. Munshi, Muhammad Shadullah, B.L. Mittar, and D.P. Ketan. Our constitution was drafted by them, came into effect on 26th January 1950. It offers justice, liberty, equality, and fraternity to all of our Indian citizens. Over to Susindra. On this day, the President of India, who is the constitutional head of our country, hoists the national flag at the national capital, New Delhi. It is followed by the Republic Day parade. Every year, we witness the development of our country through colorful tableaus from different states. Our military brothers' might is showcased through a decorated tableau of army soldiers. Children's Bravery Awards are presented at the end of the Republic Day and brings a close to the Republic Day celebration. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are also announced on the occasion of Republic Day every year. This year, India has invited Mr. Emmanuel Macron, the President of France, as the chief guest. The Beating the Retreat ceremony of Delhi takes place on 29th of January. This ceremony is conducted after 3 days of the Republic Day and brings close to the Republic Day celebration. We should be proud of our country and its constitution and should do our duty towards our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आएंगे सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे, छुआछूत को छोड़कर आपस में भिड़ना जाएंगे, हंसी खुशी हम साथ साथ मिलकर भेदभाव भुलाएंगे। सुप्रभात, मैं हेरा अहमद और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन सन 1950 में भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू हुआ था। इससे पहले कि हम गणतंत्र दिवस मनाएं, हमें गणतंत्र का अर्थ जान लेना चाहिए। तो गणतंत्र का अर्थ होता है एक ऐसा देश जिसके राज्य की सत्ता उसकी जनता के हाथों में हो और यह जनता किसी समूह या अपने प्रतिनिधियों के रूप में इसका चालन करे। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें भारत की जनता की ताकत को मनाया जाता है और हमारी जनता की एक खासियत है कि हम बहुत ही विभिन्न हैं। हम अलग अलग धर्मों, जातियों और वर्गों के होने के बावजूद भी एक हैं और इसी एकता के कारण हम एक सफल देश हैं। इसी एकता के कारण हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन आज के दौर में हम हर चीज को एक एकाधिकार मान लेते हैं। हमने अपनी स्थिति को बस एक तथ्य समझ लिया है, परंतु ऐसा नहीं है। भारत विभिन्न है और विभिन्नता बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन विभिन्नता आती है अपने चुनौतियों के साथ और इन चुनौतियों में हारने का अंजाम हम कई बार देख चुके हैं। उदाहरण के रूप में जब ब्रिटिश भारत आए थे तो उन्होंने हमें बांटकर हम पर कई वर्षों तक राज किया और जब वो यहाँ से जाने लगे तभी भी भारत एक साथ ना रह सका और उसे 2 देशों में बंटना पड़ गया। तो इन चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं? चुनौतियां किसी भी रूप में किसी भी ओर से आ सकती हैं, बस हमें एक दूसरे को समझना होगा, मन शीतल रखना होगा और एकता की ओर सदैव प्रयत्न करते रहना होगा। इसके परिणाम हमें देखने में कुछ वक्त लगेगा, जैसे कि जिन
जिन जवानों ने अपनी जान प्रदान की थी देश के लिए, उनके प्रयत्न का भी फल हमें फौरन ही नहीं दिखा था, पर आज हम देख सकते हैं हमारा भारत एक आज़ाद और एक कुशल देश है। इसीलिए हमें एकता की ओर सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए और एक बेहतर भारत बनाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। ये सत्य है कि एकता में ही अखंडता है, अखंडता है, अखंडता है। धन्यवाद। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत एवं अभिनंदन है। हम 7वीं और 8वीं के छात्र आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हैं। हमारा देश सांस्कृतिक और समृद्धि का प्रतीक है, जहाँ विभिन्न जाति और धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं।